Now, dividing total length of waterways in India. तो total length जो है that is 14,500 kilometers, out of which 3,700 kilometers is navigable by the mechanized boats. But actually used जो है that is only 2,000 kilometers. So this is the total potential of inland waterways to be that can be used, out of which 3,700 can be used by the mechanized craft or the boats, but that actually used is just 2,000 kilometers. और जो हमारे इंडिया में टोटल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, टोटल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसका जस्ट 1% इज इनलैंड वाटरवेज. मतलब out of all the transport networks, inland waterways makes only 1% of the total. ठीक हो गया जी. नाउ जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे हमारे पास नेशनल वाटरवेज होते हैं. So at present we have 6 national waterways in India. That is NW1, NW2, NW3 till NW6. So National Waterway 1, NW1. It is from Prayagraj to Haldia. Prayagraj is the new name of Allahabad. It is in UP. And this waterway is on Ganga and Hooghly rivers. Ganga and Hooghly rivers. And it has got 3 sections. First is Prayagraj to Patna. Second is from Patna to Farakka. फराका आपको याद है कुछ की नहीं? क्या है ये? फराका इज ए बराज. गुड. बट एक और खासियत क्या है? At a place called as Farakka, Ganga bifurcates itself into 2 branches. One branch remains in India with the name of Hooghly, and the other one goes into Bangladesh with the name of Padma. Okay? And third is from Farakka to Haldia. The total length of National Waterway 1 is 1,620 kilometers. ठीक हो गया? Now, National Waterway 2. National Waterway 2. That is NW2. It is on Brahmaputra River from a place called as Sadia to Dhubri. It lies in the state of Assam. Total length 891 kilometers.
Next is NW3. NW3. It is from Kottapuram to Kollam. Kottapuram to Kollam in Kerala. It is 205 kilometers long. And it includes the West Coast Canal. It includes the West Coast Canal along with Champakara Canal and your Udyog Mandal Canal. Udyog Mandal Canal. So it comprises of West Coast Canal along with Champakara Canal and Udyog Mandal Canal. Now next, National Waterway 4. It is on River Godavari and Krishna rivers. Godavari and Krishna rivers along with the canals between Kakinada and Puducherry. It is 1095 kilometers long and it is spread over Andhra Pradesh, Tamil Nadu plus Puducherry. Next is NW5. It is on Brahmani River plus Mahanadi River Delta along with East Coast Canal in the state of Odisha. NW5 and length is 623 kilometers. Next is NW6. It is on river Barak. I hope you remember this. From Lakhipur to Banga. It is 121 kilometers long and it lies majorly in Assam, Nagaland, Mizoram and Tripura. किस किस को ये बराक रिवर याद है? हाँ जी, anybody knows?
गंगा रिवर सिस्टम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। कुछ है, धुंधली धुंधली यादें कुछ? हाँ, कुछ यादें हैं। हाँ जी मैडम, बराक रिवर कौन बताएगा? हाँ जी रिया, वापिस जा रही, देखो रिया चालाक कितनी बन रही है ना। अब देखो, हम लोगों ने बात की थी ना, when Ganga enters Bangladesh it is called as Padma. Then Brahmaputra comes from India and enters Bangladesh with the name of Jamuna. Then Jamuna meets Padma, then it is called as Padma only. फिर एक रिवर इंडिया से आती है जिसका नाम है बराक. When it enters Bangladesh, it bifurcates into two branches. One branch is called as Surma. Second branch is called as Kushiara. They once again meet together and they form a river called as Meghna. Then Meghna meets Padma and later on it is called as Meghna only. आ रहा है? याद क्यों नहीं आ रहा? तो Barak river from India, it enters Bangladesh, it gets bifurcated into two branches. One branch is called as Surma, other one is called as Kushiara. Then they once again meet together and they form a river called as Meghna. And then Meghna meets Padma. है ना? तो ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 6 है, इट इज ऑन रिवर बराक रिवर फ्रॉम लाखीपुर टू भंगा. ठीक हो गया? चले, ये थे जी हमारे नेशनल वाटरवेज. अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप, द हेडक्वार्टर्स ऑफ inland waterways lies in, इसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर इज इन नोएडा, यूपी. नोएडा, यूपी. ठीक हो गया जी. नाउ नेक्स्ट, पोर्ट्स. अब पोर्ट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज मेजर पोर्ट्स एंड वी हैव माइनर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट्स आर 13 in number and minor ports are around 199 in number. And maximum of minor ports lies in the state of Maharashtra. और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स किस स्टेट में है? मेजर माइनर तो हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स आर इन द स्टेट ऑफ, शाबाश जोर से बोलो, तमिलनाडु. यहां पे 3 हैं. एक तो चेन्नई पोर्ट, हाँ भाई साहब, आंध्र प्रदेश. टुट्टीकुड़ी, तीसरा एन्नोर. ठीक है, चलें. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स तमिलनाडु में है, दैट इज 3 इन नंबर. मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनर पोर्ट्स आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, अब ये पोर्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर Kandala. It is in Gujarat, in Gulf of Kutch. Then we have Mumbai,
मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया जिसका पुराना नाम था नवा शेवा, पर अभी इसको क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. Then we have major port in Goa, which lies at the mouth of which river? जब रिवर्स करवा रहा तब मैंने बताया था. There are two major rivers in Goa, जुआरी और मांडोवी. और ये किसके माउथ पे बनता है? जुआरी रिवर के. It is on the mouth of जुआरी river. And the name of port is, जोर से बोलो. मुर्मू मैडम हमारी प्रेसिडेंट है. मारमागांव. Marmagaon. Then we have a major port in Karnataka that is called as New Mangalore. And the major port of Kerala is Kochi or Kochi. Now in the state of Tamil Nadu, first port is called as Tuticorin, जिसका नाम बदल गया है. बताता हूँ अभी क्या है. सिताम्बरम पोर्ट बोलते हैं इसको. Then we have the major port called as Chennai. इसको भी डीकंजेस्ट करने के लिए एक माइनर मेजर पोर्ट बनाया गया है जिसको पहले नाम था एन्नोर, इसका नाम भी बदल गया है. हाँ, कामराज पोर्ट. नेक्स्ट वी हैव द मेजर पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, दैट इज विशाखापट्टनम और वाइजैग. Then in Odisha we have a major port called as Paradeep. And then we have the major port in West Bengal, Kolkata. Shyama Prasad Mukherjee port. And then we have a new entry into the list in Andaman Nicobars on the island called as South Andaman Island. South Andaman Island के ऊपर है. That is your Port Blair. इसका नाम भी बदल गया है, विजयपुरम पोर्ट. ठीक हो गया. Now write something about the ports. First is Kandala. It was developed after independence. It was developed after independence to compensate for the loss of Karachi port to Pakistan. After the loss of Karachi port to Pakistan. अब देखें, after partition of India, there were three major losses to India. First was the loss of Karachi port. Second was the largest canal network went to Pakistani part of Punjab.
तो उस टाइम का वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क था वो चला गया पाकिस्तानी पार्ट ऑफ पंजाब में. एंड थर्ड मेजर लॉस वाज मेजर jute growing areas went to East Pakistan and today's Bangladesh. तो इंडस्ट्रीज रहेगी हमारे पास, जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और जो मेन जूट ग्रोइंग एरियाज थे दे वेंट टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, टुडेज बांग्लादेश. तो हमने जितना भी अपने जूट ग्रोइंग एरियाज को डेवलप किया है वो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलप किया है. एंड टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. ठीक हो गया. तो दीज वर द थ्री मेजर लॉसेस टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन. और कराची पोर्ट के लॉस को ओवरकम करने के लिए हमको कांडला पोर्ट को डेवलप करना पड़ा इन गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक हो गया जी. लिखेंगे इसको, लिख लिया ये. नेक्स्ट पॉइंट कांडला के अंदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट इन गल्फ ऑफ कच्छ. नेक्स्ट राइट लिखेंगे मुंबई. It handles the maximum traffic. It handles the maximum traffic, and so it is the busiest port of India. Next point. It has a natural harbor. It has a natural harbor and is the second oldest port. Second oldest port after कांडला. क्या करता है वो तो इंडिपेंडेंस के बाद बना. पोर्ट तो पहले से थे, मुंबई तो पहले का डेवलप्ड है. कोलकाता आफ्टर कोलकाता. तो इंडिया में जो ओल्डेस्ट पोर्ट है वो कोलकाता है. नाउ पोर्ट और हार्बर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, एनीबॉडी? शाबाश, ठीक है. किस किस पर्पस के लिए? शाबाश, गुड, वेरी नाइस. अब देखो क्या है, बसेस कहां पर रात को सोती हैं? बस स्टैंड में. गुड. तो बसेस के लिए क्या होता है? बस स्टैंड. एरोप्लेन्स कहां पर आपको रेस्ट करते हैं? नो, हैंगर. हैंगर. ठीक हो गया. और हमारी रेलवे रात को कहां सोती है भाई? नो, रेलवे यार्ड. रेलवे यार्ड. तो दैट इज हार्बर इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ शिप्स. तो जहां पर आप शिप्स को खड़ा कर पाओ, फिर उनकी अगर आपने मेंटेनेंस करनी है, कोई प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड एज हार्बर. अब देखो से ये आपका पोर्ट का होता है जहां पर एवरीथिंग रिगार्डिंग शिपिंग इंडस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट. तो हार्बर्स आर पार्ट ऑफ द पोर्ट्स. अब सपोज करो ये पोर्ट है और यहां पर आपने शिप्स को खड़ा कर दिया फॉर इधर मेंटेनेंस पर्पस या लोडिंग अनलोडिंग के लिए, कुछ भी आपने करना है. ठीक हो गया. अब अगर आपने ऐसे लाइन में शिप्स को लगा दिया और सी में वेव एक्शन हुआ तो वेव्स आकर हिट करेंगी शिप्स को, तो शिप्स हिलती रहेंगी.
शिप्स विल मूव अराउंड, है ना, हिलती रहेंगी। तो क्या आप लोडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अनलोडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेंटेनेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मतलब जहां पर आप शिप्स को खड़ा करते हैं वहां पर कभी भी डायरेक्ट वेव एक्शन नहीं होना चाहिए। यस और नो? डायरेक्ट वेव एक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहां वाटर शुड बी स्टैंड स्टिल। और यूजुअली उस एंट्री पॉइंट में एक ही जगह होती है एंट्री करने की और एग्जिट होने की भी। ठीक हो गया? तो these are the places where ship stands for either loading, unloading or for the maintenance purpose. And in the harbors there is no direct wave action. वहां पे waves enter नहीं करती होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं। तो हार्बर्स आर पार्ट ऑफ द पोर्ट्स। हो गए? चले नेक्स्ट। मुंबई हैज, अब देखो कई पोर्ट्स के अंदर दिस थिंग इज नेचुरल, और जहां पे नेचुरल नहीं होगी तो वहां क्या करेंगे हम? वहां पे हम आर्टिफिशियली डेवलप करेंगे। जैसे चेन्नई जो है, इट इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। वहां पे हार्बर को डेवलप किया गया है। वहां पे नेचुरल इट वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है? तो वो क्या होगी? आर्टिफिशियल होगा। चले नेक्स्ट। नवा सेवा, NAVASHEVA, नवा सेवा। इसका नया नेम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। It was built. It was built to decongest Mumbai port. It was built to decongest Mumbai port. Next point, it is equipped with modern facilities. It is equipped with modern facilities, having mechanized contained berths, having mechanized contained berths for handling dry bulk cargoes, for handling dry bulk cargoes. Next is Marmagao. Next is Marmagao. It is the major port of Goa. It is the major port of Goa, located at the mouth of Zuari River. Located at the mouth of Zuari River. Next is New Mangalore. It's a major port in Karnataka. Major port in Karnataka. And the iron ore from Kudremukh mines. I hope you remember, मैंने पहले ही बता रखा है जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे थे। Kudremukh mines in Baba Budan Hills. In Baba Budan Hills in Karnataka is exported. Next is Cochin. It's the major port in Kerala, having a natural harbor and located on आपने नोटिस किया
मैंने बाकी सभी पोर्ट्स को लैंड पे ड्रॉ किया था, पर इसको मैंने लैंड के बाहर किया था, नोबडी नोटिस्ड इट, है ना। तो इट इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड एंड द नेम ऑफ आइलैंड इज वेलिंगडन आइलैंड and is located on Wellington Island. और मेनलैंड इंडिया से जो रोड इस आइलैंड को कनेक्ट करती है, ये है इंडिया का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे 47A। आगे पॉइंट लिखेंगे, द नेशनल हाईवे 47A connects Kochi city and the Wellington Island ठीक हो गया अंदर। नेक्स्ट इज टुट्टी को कुड़ी, इसका पहले बोलते टुट्टी कोरिन। अब इसका नया नाम क्या है? चिदम्बरम पोर्ट। अब आप लोगों ने उसका नाम सुना है? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था। हैव यू हर्ड इट? नो। अब देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में वी हैव 3 वाटर बॉडीज। एक आता है गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो नाम सुना होगा। एक आता है आपका पाल्क बे, और एक आपकी आती है पाल्क स्ट्रेट। और ये रहा आपका चिदम्बरम पोर्ट, गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक हो गया। अब ये हमारा श्रीलंका है, और श्रीलंका का जो मेजर पोर्ट है उसका नाम है कोलंबो। अब जितनी भी शिप्स यूरोप से आती हैं और अफ्रीका से होके आती हैं, फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप रूट, केप ऑफ गुड होप रूट मतलब अटलांटिक से केप ऑफ गुड होप, फिर वहां से टुवर्ड्स इंडियन ओशन एंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां पर कौन सी आ जाता है? साउथ ईस्ट एशिया। एंड साउथ ईस्ट एशिया लिंक्स बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। यहां पर वी हैव a port very famous in country called as Singapore. Singapore is an island. अब देखो, कोई भी पोर्ट जो एक लंबी वॉयज के बीच में हो, उसको नाम दिया जाता है, अगर वो ऐसा डेवलप कर ले, उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब, अब देखो, अगर आपने अटलांटिक ओशन से आप आ रहे हैं, अब आपने केप ऑफ गुड होप से होते हुए आपने साउथ ईस्ट एशिया जाना है, यहाँ पैसिफिक ओशन जाना है, तो इट्स अ लॉन्ग सी रूट, वेरी लॉन्ग वॉयज। आपकी शिप रास्ते में खराब हो सकती है ना। आपका खाने का सामान कम हो सकता है, पानी कम हो सकता है, या एनी अदर प्रॉब्लम कैन बी देयर इन द लॉन्गर पार्ट ऑफ द सी रूट, इजंट इट? तो अगर आपकी शिप में कोई दिक्कत आ गई है, तो कोई ऐसी पोर्ट होनी चाहिए जहां पर शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर कोई भी काम, चाहे वो मेंटेनेंस वर्क हो या अदर थिंग्स हो, वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे रेक्टिफाई होनी चाहिए।
ठीक है। तो जो कोई ऐसी पोर्ट हो उसको हम नाम कह देते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। कॉल मतलब आप फोन कॉल करें तो आप बोले आपको भाई ये प्रॉब्लम है, तो आपकी वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होनी चाहिए। तो आज की डेट पे हमारे वर्ल्ड में कुछ मेजर पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन के बीच में द कैपिटल ऑफ हवाईयन आइलैंड्स इन यूएसए, दैट इज होनोलुलु। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। इज द कैपिटल ऑफ हवाईयन आइलैंड्स इन यूएसए। तो होनोलुलु क्या है? इट इज द पोर्ट ऑफ कॉल इन पैसिफिक ओशन। ठीक है। सेकेंड, इंडियन ओशन में पोर्ट ऑफ कॉल कौन सी है? कोलंबो, श्रीलंका। और द कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड योर दिस क्या बोलते हैं इसको, पैसिफिक ओशन, दैट इज कॉल्ड एज सिंगापुर। ये वर्ल्ड की मेजर पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं। अब एक नई पोर्ट डेवलप हो रही है, मलेशिया कर रहा है, उसका नाम है पिनांग। इट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर इन मलेशिया। ठीक हो गया। ये कुछ मेजर पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं। तो जो पोर्ट ऑफ कॉल होती है, यू कैन इमेजिन कि वो कितना पैसा जनरेट करती होगी। ठीक है। अब हमारा यहां से शिप्स नहीं जाती हैं। क्यों? यहां पर डेप्थ कम है। डेप्थ ऑफ वाटर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर शिप्स। डेप्थ कम है, इसलिए जो शिप्स हैं वो श्रीलंका को सरकुम नेविगेट करती हुई साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाती हैं। अब हमारा एक प्लान था कि हम इस एरिया में एक शिपिंग कैनाल बनाएं, और उसका प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट और शिपिंग कैनाल। अब देखो, अगर इंडिया ये डेवलप कर लेता है शिपिंग कैनाल, तो जो शिप्स श्रीलंका को सरकुम नेविगेट करके जा रही हैं वहां पे कुछ टाइम लगता है एक्स्ट्रा, 36 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगता है अगर शिप्स श्रीलंका से होके जाए। और अगर यहां से जाएं तो 36 आवर्स कैन बी सेव्ड, मतलब 1.5 दिन। अब जब 1.5 दिन बचेगा तो आपका फ्यूल भी बचेगा, ऐसा नो, टाइम भी बचेगा शिप्स का और फ्यूल भी बचेगा। तो अगर सपोज करो इस पूरे का अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो से इफ इट कम्स अराउंड ₹100, एग्जाम्पल ₹100 कॉस्ट आती है, टाइम प्लस द फ्यूल कॉस्ट। अगर इंडिया चार्ज करता है शिप से ₹50, तो शिप्स यहां से जाएंगी या यहां से जाएंगी? यहां से जाएंगी। तो सोचो कितना फॉरेन एक्सचेंज हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। ऊपर से टुट्टीगुड़ी और द चिदम्बरम पोर्ट विल बिकम न्यू पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितना पैसे हम कमा सकते हैं बाय सिंपली मेकिंग दिस सी रूट कॉल्ड एज सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या लगता है प्रॉब्लम क्यों नहीं बना रहे? पहली बात तो जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ये हमारा मुन्नार भी बोलते हैं और मन्नार भी बोलते हैं इसको। ये इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां पर बड़े सुंदर कोरल रीफ्स है, वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है। दूसरा, जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, जब शिप्स चलेंगी तो मछलियां भाग जाएंगी, तो उनको लॉस होगा। ठीक है। ऊपर से इस एरिया की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है
कि इसको अंग्रेजों ने नाम दिया एडम्स ब्रिज, और हम लोग इसको बोलते हैं राम सेतु। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर जो पंबन आइलैंड है उसको डिग करके उसके ऊपर से कैनाल बनानी पड़ेगी, और ड्रेजिंग नहीं पड़ेगी, डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय होंगे थोड़े बहुत, फिर हमारे मछलियां भाग जाएंगी, और एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, तो उसमें रिलीजियस सेंटिमेंट शुड नॉट कम इनटू प्ले। पहली बात। दूसरी बात, जो फिशरमैन्स को लॉस होगा, उनको मछलियां नहीं मिलेंगी, उनको आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट दो। पोर्ट ऑफ कॉल जो डेवलप होगी टूटीगुड़ी, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराओ, बिकॉज स्कोप इज एनॉर्मस टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो उन फिशरमैन्स को हम वहां पे कंपनसेट कर सकते हैं, और जो हम पैसा अर्न करेंगे उससे हम वहां की इकोलॉजी को भी रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वी शुड हैव अ गो अहेड फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। ऊपर से अब कौन सी शिप है जो यहां इस रास्ते को छोड़कर यहां से जाएगी? सोचो। जाएगी जो इलीगल होगी। तो यू कैन हैव एन आई ऑन दोज शिप्स कि कौन बेवकूफ है जो इस रास्ते को छोड़कर 36 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके जा रहा है। हाँ? अब उसने ऑस्ट्रेलिया जाना तो बात अलग है। अगर वो यहां से घूमकर फिर इधर आ रहा है, यहां से नहीं गया, तो मतलब समथिंग इज फिशी इन द वाटर्स। तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट आता है। पर फिलहाल नहीं, ये पहली बार जो इसका आइडिया कास्ट हुआ था ये ब्रिटिश टाइम्स में हुआ था, तब से इसकी बात चलते जा रही है। बट किसी ने अब तक अपने, कहते ना, एक विल पावर नहीं दिखाई है कि इसको बनाना है। अगर ये, हाँ, फिर मुश्किल है, सही बोला आपने। तो फिलहाल ये मुश्किल है। तो इसको मेरे हिसाब से दिस प्रोजेक्ट शुड बी गो अहेड। ठीक है, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या लिखा था? हो गया ये? क्या लिखा टुटीकोडी में? ऑल्सो न्यू नेम चिदम्बरम पोर्ट। अब आगे स्टोरी समझ में आ गई आपको, छोड़ो क्या लिखना है। नेक्स्ट, चेन्नई। चेन्नई इट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट पोर्ट नहीं है, मतलब ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिजिएस्ट आफ्टर मुंबई। आफ्टर मुंबई। नेक्स्ट, एन्नोर। एन्नोर, इसका नया नाम के कामराज पोर्ट। के कामराज पोर्ट, and was built to decongest Chennai port. And was built to decongest Mumbai port. Next लिखेंगे विशाखापट्टनम is a major port of Andhra Pradesh and is the deepest port of India. Deepest major port of India. Next, Paradip,
मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा, कोई खासियत नहीं है। नेक्स्ट इज कोलकाता, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, oldest port of India, located on river Hooghly, located on river Hooghly, and so it is an example of, and so it is an example of river port or riverine port of India. Next, new name, Shyama Prasad Mukherjee Port, Shyama Prasad Mukherjee Port. अच्छा, कांडला का नया नाम लिखा हम लोगों ने? नहीं लिखा ना, लिखेंगे कांडला में नया नाम। कांडला का नया नाम है दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। न्यू नेम ऑफ कांडला इज दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट माइनर पोर्ट, नहीं एक और रह गया हमारा, पोर्ट ब्लेयर। 13 लिखेंगे पोर्ट ब्लेयर। न्यू नेम विजयपुरम पोर्ट, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया ना, विजयपुरम पोर्ट। इट इज द लेटेस्ट एडिशन, it was the latest addition in the list of major ports, in the list of major ports, and was built in 2010. Now important minor ports, Okha, OKHA, Veeraval, VERAVAL, Veeraval, Bhavnagar, Dahej, गंदी बात है, दहेज लेना। एंड नेक्स्ट इज सलाया, SALAYA। ये सभी पोर्ट्स गुजरात में हैं, माइनर पोर्ट्स। नेक्स्ट लिखेंगे रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र में है। कारवार, KARWAR, कारवार, ये आपका कर्नाटका में है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंस है। अब इंडियन जो नेवी है उसकी एक ईस्टर्न कमांड है, उसकी एक वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड का जो पहले हेडक्वार्टर था वो मुंबई था, इट वॉज मुंबई। अब जो नेवी की वेस्टर्न कमांड है उसको एक फुल फ्लेज पोर्ट दे दिया गया है, दैट इज कारवार। तो रहेंगे हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन वेस्टर्न नेवी इज लोकेटेड एट कारवार इन कर्नाटका। नेक्स्ट अर्नाकुलम, ERNAKULLAM, अर्नाकुलम, ये केरला में है। नेक्स्ट इज काकीनाडा, KAKINADA, काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश में है। Now important private ports, first मुंद्रा, वेरी फेमस नाउडेज, सुना होगा नाम सबने। सारे पोर्ट हटाने के प्राइवेट। मुंद्रा पोर्ट
It is the largest private port of India. In Gulf of Kutch. In Gulf of Kutch. Belongs to Adani Group. Next is Krishnapatnam Port. Krishnapatnam Private Port. ये आंध्रा में है. Again belongs to Adani Group. ठीक हो गया? Is this clear to everybody? Now next, pipelines of India. Important pipelines. Total length of pipelines 36,284, 36284 kilometers. Next line, oil pipelines 8,943 kilometers. 8943 kilometers. Next, gas pipelines 17,752. Now, important pipelines. Number one, Nahar Katia, NAHAR KATIA, Nahar Katia dash Noonmati dash Barauni, BARAUNI, Barauni pipeline. तो नाहर कटिया और नूनमती ये असम में है और बरौनी जंक्शन है ये हमारा बिहार में है. देखेंगे. It was the first pipeline to bring crude oil from Nahar Katia oil fields in Assam to Noonmati refineries. First off, later on extended to Barauni in Bihar. And now it is extended to Kanpur in UP and Haldia in West Bengal. Total length 1167 kilometers. There. Next, Mumbai High HIGH dash Mumbai dash Ankleshwar dash Koyali pipeline. मुंबई हाई क्या चीज है? कहां पर? शाबाश, मुंबई में. अब ये है आपका मुंबई सिटी, ये है हमारा दीव आइलैंड. दमन इधर है और दीव इज एन आइलैंड. पता ही आप लोगों को. अगर आप
दीव से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, मुंबई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जहां पर ये दोनों लाइन क्रिस क्रॉस होंगी, दैट इज मुंबई हाई, एंड इट्स एन ऑयल फील्ड in the continental shelf of Arabian Sea and is the largest producer of oil in India. ठीक है जी, ये है लोकेशन किसकी? मुंबई हाई की। तो यहां से पाइपलाइन जाती है मुंबई को, मुंबई से अंकलेश्वर, अंकलेश्वर से कोयाली, गुजरात के अंदर। ठीक है, चले लिखेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, सलाया, SALAYA डैश कोयाली डैश मथुरा। सलाया और कोयाली किधर हैं? गुजरात में, और मथुरा यूपी में। ठीक है, इट इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑयल रिफाइनरी इन पानीपत। इट इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑयल रिफाइनरीज एट पानीपत एंड जालंधर एंड जालंधर। इसकी लेंथ है 1256 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज वेरी फेमस पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन। H से प्लेस कॉल्ड एज हजीरा, B से बीजापुर, J से जगदीशपुर। हजीरा इज इन महाराष्ट्र, बीजापुर इज इन मध्य प्रदेश, जगदीशपुर इज इन यूपी। HBJ pipeline. It is 750 kilometers long. महाराष्ट्र में। 1750, 1750 देखेंगे। It is India's first cross country pipeline. हजीरा गुजरात में, महाराष्ट्र में? कंफर्म करो ऐप, मुझे महाराष्ट्र में क्यों लग रहा है? सूरत के पास नहीं, गुजरात में, सॉरी, मेक ए चेंज। हजीरा इज इन गुजरात। The first cross country pipeline of India. It is under GAIL, GAIL, Gas Authority India Limited, and is the world's largest underground pipeline. Next is Jamnagar dash Luni. Jamnagar dash Luni pipeline. It is the longest LPG pipeline in the world. Longest LPG pipeline in the world.
और इसकी लेंथ है 1269 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज कांडला बठिंडा। कांडला बठिंडा, it is under IOC, Indian Oil Corporation. This pipeline is proposed to be constructed for transporting crude oil to the proposed refinery at Bathinda. ठीक हो गया? Full stop. This pipeline will further be extended to Srinagar. तो भाई ये थे जी आपके मेजर ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इट इज ओवर। तो टुमारो विल बी स्टार्टिंग क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है जी।